دوسرے روز میری حالت کچھ سنبھل گئی۔ کبڑے ناک کی منحوس صورت میرے لیے اس قدر ذہنی پریشانی کا سبب تھی کہ میں ہکا بکا سا رہا۔ اس کے بعد میں نے ننھی نسرین سے دل بہلانا شروع کر دیا۔ اس طرح میرے دل سے خوف کم ہوتا گیا۔ کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی میں یہ سمجھ نہ سکا کہ اس رات کبڑا بوڑھا پتھر کسے مار رہا تھا، اور نہ میں اس کی پراسرار شخصیت کے متعلق کچھ معلوم کر سکا۔ میں اپنی اور قریبی بستی کے تمام لوگوں سے پوری طرح واقف تھا اور ہر ایک کو جانتا تھا، لیکن وہ بوڑھا ناگ نہ جانے کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا۔ یہ چند ایسے سوال تھے کہ جن کو میرے لیے حل کرنا کسی طرح بھی ممکن نہ ہوا۔ جب نسرین اپنی عمر کے 3 سال پورے کر چکی تو وہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ اس کی بھولی بھالی باتیں، معصوم صورت اور دل نواز مسکراہٹ ہماری مسرتوں میں اضافے کا باعث تھی۔ سرور کو اس لڑکی سے بے اندازہ محبت تھی اور خود یاسمین بھی بیٹی پر نثار تھی۔ مجھے نسرین سے کچھ اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ گھنٹوں اسے گود میں لیے گھومتا رہتا، اس کی عمر درازی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ لڑکی انتہائی نازک اور خوبصورت تھی۔ مزید 1 برس گزرنے پر میں نے یاسمین کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی محسوس کی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا اس کی خوشیاں اس سے چھینی جا رہی ہیں۔ مجھے ان دونوں کا قرب حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے اس وقت اس تبدیلی کا سبب نہ معلوم ہو سکا۔ یاسمین اب نہ صرف اداس تھی بلکہ اسے اپنی بیٹی سے بھی پہلے سی دلچسپی نہ رہی تھی۔ وہ چند ماہ میں ایک سوگوار مظلومہ نظر آنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ چھن گئی، اس کے کہکہے لوٹے جا چکے تھے۔ وہ چپ چاپ رہتی اور کام بہت کم کرتی۔ میں نے یاسمین سے اس کی اداسی کے متعلق دریافت کیا، لیکن اس نے ہمیشہ مجھے ٹال دیا۔ ادھر خود سرور بھی پریشان نظر آتا تھا۔ وہ دن بھر قصر احمر سے غائب رہتا اور شام ہونے کے بعد واپس آ جاتا تھا۔ ابھی میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ ایک روز فیروز نے دبے لفظوں میں مجھ سے شکوہ کیا اور یہ ظاہر کیا کہ اس کے خیال میں یاسمین اس زندگی سے خوش نہیں ہے۔ لیکن میں نے فیروز کی اس بات کو بظاہر قطعی تسلیم نہیں کیا اور اسے یہ بتلایا کہ اس کی بہن اپنی ازدواجی زندگی اطمینان و سکون سے گزار رہی ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ جب یاسمین کی اداسی حد سے زیادہ تجاوز کر گئی، اس وقت میں نے سرور کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، کیوں بیٹا، کیا یاسمین کی اداسی کا سبب بتلا سکتے ہو؟ اس نے اپنے بالوں کو کھجاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی طرح دوبارہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو۔ میں نے کہا، ایسی صورت میں اس کی غلط فہمی دور کرنا تمہارا فرض ہے۔ ہمیں نسرین کی پرورش کے لیے اس کی ماں کی سلامتی کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت سرور کچھ کھویا ہوا سا تھا، اسی لیے میری باتوں کا معقولیت سے جواب نہ دے سکا۔ بوکھلاتے ہوئے کہنے لگا، میں اسے کہاں تک سمجھاؤں، کس طرح اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں؟ اس کی بدگمانیوں کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ وہ یقیناً پاگل ہو چکی ہے۔ صرف یہ کہ میں اس کے خیال میں اس جگہ کسی دوسری لڑکی سے ملتا ہوں، اسے چھپا چھپا کر اس جگہ لاتا ہوں، اور تمہارے خیال میں یہ صرف اس کا وہم اور محض بدگمانی ہے؟ یقیناً دادا، میں نے کبھی یاسمین کے سوا کسی دوسری لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ محبت کرنا تو دوسری بات ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ سرور، اگر یہ سب کچھ محض یاسمین کا وہم ہے تو اس کو جلد سے جلد دور کرنے کی کوشش کرو۔ اس کی گرتی ہوئی حالت اور بگڑتی ہوئی صحت سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے۔ سرور نے اپنی معصوم نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنے سر کو میری گود میں گراتے ہوئے کہا، دادا، یہ کام اب میرے بس سے باہر ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض قصر احمر کی نحوست کے باعث ہو رہا ہو۔ میرے اس جواب پر سرور کی دونوں آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر بزرگوں کا سا جلال آنے لگا۔ اس نے کرخت لہجے میں کہا، دادا، ایسے لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ میرے قابل فخر بزرگوں کی مقدس قیامگاہ کس طرح میرے اور میرے متعلقین کے لیے منحوس ہو سکتی ہے؟ اس عمارت کا ہر ذرہ میرے لیے لال و گوہر سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ میں نے سرور کے ٹمٹماتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بات کا رخ بدل دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس کا غصہ سرد پڑتا گیا۔ اس کے غیظ و غضب کی چنگاریاں دبتی گئیں، یہاں تک کہ جس وقت میں اسے علیحدہ ہوا وہ اپنے اچھے موڈ میں تھا۔ اس گفتگو کے بعد چوتھے روز میں نے یاسمین کو تخلیہ میں بٹھا کر سمجھانا شروع کیا۔ اس نے کہا، دادا، مجھے ان سے نہ شکوہ ہے اور نہ شکایت، اور نہ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ مجھے دکھ دے رہے ہیں، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا، بتلائیے میں اسے کس طرح فراموش کر سکتی ہوں؟ میں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی مگر تاثرات میرے دماغ سے دور نہ ہو سکے۔ لیکن یاسمین، کیا تم یہ بتلا سکتی ہو کہ تم نے اس جگہ کیا دیکھا؟ جی ہاں،
میں نے جو کچھ دیکھا وہ دکھا سکتی ہوں، اور جو کچھ خاموش راتوں میں نے سنا وہ سنوا بھی سکتی ہوں۔ اس وقت یاسمین کی دونوں آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یاسمین کا اس گانے والی عورت کو دیکھ لینے میں کامیاب ہو جانا نہایت ہی عجیب بات تھی، کیونکہ میں نے ابھی تک اپنی انتھک کوششوں کے باوجود گانے والی عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے میرے لبوں پر خاموشی کی مہر لگا دی۔ میں پاگل انسانوں کی طرح ٹکٹکی باندھے اس معصوم لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر صداقت کی پاکیزگی موجود تھی۔ طویل خاموشی کے بعد میں نے جواب میں کہا، مجھے یقین کے لیے کسی ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہے یاسمین۔ ثبوت؟ اس نے میری طرف تعجب سے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ اس کے بغیر میرے لیے کسی قطعی نتیجے پر پہنچنا ناممکن ہے۔ انتظار کریں، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت جلدی نتیجے پر پہنچا سکوں گی۔ اس وقت میری حالت گرتی جا رہی تھی۔ میں خود کو یاسمین کے مقابلے میں نہایت ہی کمزور سمجھنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، بہت اچھا بیٹی، میں ضرور انتظار کروں گا۔ ایک رات جب سیاہ چادر نے تمام دنیا کو اپنی آغوش میں دبوچ رکھا تھا، یاسمین نے میرے کمرے میں پہنچ کر مجھے بیدار کیا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ معصوم نسرین کو اس نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ میرے برابر خاموش کھڑی تھی۔ میں نے غیر ہموار لہجے میں سوال کیا، کیا بات ہے یاسمین بیٹی؟ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی؟ یعنی؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے سوال کیا۔ یاسمین نے کہا، دادا، آج آپ کچھ بھی سن سکیں گے اور کسی کو دیکھ بھی سکیں گے، آئیے۔ وہ مجھے لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ہم بڑے صحن میں پہنچ گئے۔ اچانک میں نے اسی درد بھرے نغمہ کو سنا، دل پاش پاش کرنے والا نغمہ درد۔ کسی معصوم روح نے اپنی فریاد بلند کی، اس طرف آ جائیے۔ یاسمین نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب ہم دونوں ایک بڑے ستون کی آڑ میں خاموش کھڑے تھے۔ میری آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ تاریکی کا گہرا سمندر حد نگاہ تک ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آسمان پر ستارے خاموش تھے۔ ہوا کی سائیں کسی نامعلوم وجوہ کی بنا پر رکی ہوئی تھی۔ درختوں کی شاخیں بے حرکت تھیں۔ تھوڑی دیر تک اپنا سانس روکے اسی طرح کھڑے رہے۔ اچانک یاسمین نے میرا ہاتھ دبایا۔ میری آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ تھوڑے فاصلے پر تاریک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ اس کا رخ سرور کی خوابگاہ کی طرف تھا۔ میں خاموشی کے عالم میں اس منظر کو مجبوراً دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ سایہ دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ دفتن اندر کی روشنی باہر کے کچھ حصے میں پھیل گئی۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے خوابگاہ کا کچھ حصہ ایک جگہ سے دکھائی دے رہا تھا۔ تاریک سایہ اب روشنی کی کسی عورت کا مجسمہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یاسمین نے آہستہ سے کہا، اب اس طرف آئیے۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں دبے پاؤں دوسری طرف بڑھنے لگے۔ اس کے بعد یاسمین نے پشت والی کھڑکی کے پاس مجھے پہنچا دیا۔ میرا جسم برف کی مانند سرد ہوتا جا رہا تھا۔ یاسمین نے دبے لفظوں میں کہا، اب اس دروازے میں سے اندر کی طرف جھانکیے۔ خوابگاہ کی روشنی کھڑکی کے دروازوں میں سے روشن لکیروں کی صورت میں باہر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک آنکھ درز سے لگا لی اور اندر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ سرور کے پلنگ کے پاس ایک نہایت ہی خوبصورت عورت خاموش کھڑی نوجوان سرور کو دیکھ رہی تھی۔ روشنی میں اس خوبصورت ناظرین کا چہرہ نہایت ہی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا گندمی رنگ، پتلے نازک ہونٹ، لمبی گردن، چھوٹا سا قد سایہ اور لمبے بال، یاس کی تصویر، مایوسی کا مجسمہ، ایک مظلوم حسینہ پلنگ کے پاس کھڑی اس طرح سرور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، گویا وہ اس کی کوئی ایسی گمشدہ شے ہے جو اس کی توقع کے خلاف اچانک اس کے سامنے آ گئی ہے۔ سرور محو خواب تھا۔ آنکھیں بند تھیں۔ لیمپ کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے تنفس کی آواز بلند تھی اور وہ اس وقت گہری نیند کے عالم میں تھا۔ اس وقت میرے سامنے ایک نہایت ہی حسین منظر موجود تھا، مگر حیرت انگیز۔ رومانی راتوں کی رومان پرور حسینہ اچانک سرور کی طرف آہستہ سے جھکی۔ قریب تھا کہ دونوں کے جسم آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتے، مگر وہ جھجک گئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک قہر آلود ناز جھپکنے والی آنکھ سے گھور رہی تھی۔ اس عورت نے دروازے کی طرف دیکھا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس دروازے کی طرف بڑھنے لگی، گویا کسی خطرناک سانپ نے اپنی آنکھ کی مقناطیسی قوت کے ذریعے اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ ہر قدم پر لڑکھڑاتی، چکراتی، مگر گری نہیں، آنکھ سے خود بخود دور ہونے لگی۔ اس ہوش ربا ناظرین کی نگاہیں اسی خطرناک آنکھ پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ سرور کی خوابگاہ سے باہر پہنچ گئی۔ میں اس وقت اس ہوش ربا اور ناقابل فراموش ڈرامائی منظر کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ مجھے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ یاسمین کس وقت اس جگہ سے کھسک گئی۔
आंख के ओझल होने के बाद रात के गहरे अंधेरे ने उस हसीना को भी अपने दामन में छुपा लिया। इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं उस जगह तन्हा हूं। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन यास्मीन कहीं भी ना थी। मैं समझ गया कि वो मुझे इस जगह छोड़कर जा चुकी है। उसे उस जगह मौजूद ना पाकर मैं उसकी आरामगाह की तरफ बढ़ा। इस किस्म का मंजर यास्मीन की कुव्वते बर्दाश्त से बाहर था। कोई औरत ऐसी हालत में पुरसुकून नहीं रह सकती। मैं तेजी के साथ यास्मीन की आरामगाह के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लैंप रोशन था और बाहर की तरह उसके कमरे में गहरा सकूत तारी था। मैंने दरवाजा पर दस्तक दी, खामोशी न टूटी। दोबारा दस्तक दी, इस बार भी जवाब न मिला। मैंने उसका नाम लेकर उसे पुकारा, मगर बेसुध। उसको मुतअद्दिद मर्तबा पुकारने के बाद मैंने दरवाजे की दर्ज में से अंदर की तरफ झांकना शुरू किया। यास्मीन पलंग पर औंधी पड़ी हुई थी। उसका खूबसूरत जिस्म इस तरह लरज रहा था गोया कि वो आहिस्ता आहिस्ता सिसक रही हो। मैं देर तक उस जगह खड़ा अंदर की तरफ देखता रहा। यास्मीन सिसक रही थी और मेरे दिल का खून हो रहा था। खामोशी को चीरती हुई वही दर्द भरी सदा दफअतन कुछ फासले पर बुलंद हुई। ऐसा मालूम हुआ कि गोया वही औरत कसरे अहमर से बाहर थोड़े फासले पर आहो बका कर रही है। चंद लम्हों के बाद दोबारा खामोशी तारी हो गई। मैंने देखा कि यास्मीन ने खुद को पहलू के बल दराज कर लिया। उसके दोनों हाथ हिले और सफेद चादर ने उसके तमाम जिस्म को ढांप लिया। इस वाकये के सिर्फ 2 माह बाद यास्मीन एक मरीज की सूरत इख्तियार कर गई। इसके अलावा उसके भाई फेरोज को उसकी अलालत का राज भी मालूम हो गया। चुनाचे एक रोज मुझे अपने घर बुलाया और निहायत ही जान का सदमा का इजहार किया। उसने कहा, दादा, मेरी फूल जैसी नाजुक अंदाम बहन सिर्फ उस लड़की की वजह से बीमार हुई जो रात के वक्त पोशीदा तौर पर कसरे अहमर में आ जाती है। वो इन दिनों निहायत ही लागर और बहुत कमजोर है। उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैंने शादी के वक्त आपसे ये वादा ले लिया था कि यास्मीन को खुश रखा जाएगा, लेकिन मेरा वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हुआ। आप जानते हैं कि मुझे उसे किस कदर मोहब्बत है। खुदा ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा न रह सकूंगा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फेरोज, इस किस्म की मायूसी की बातें अच्छी नहीं। यास्मीन इत्तफाक से बीमार हो गई है, इलाज हो रहा है। खुदा ने चाहा तो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। मैं काफी देर तक फेरोज को समझाता रहा। उसकी बातों से यूं मालूम होता था कि गोया उस पुरस्कार नाज़नीन का राज खुद उसकी हमशीरा ने उस पर जाहिर कर दिया है। उसकी तरफ से हर बार उसी औरत के मुतालिक जिक्र आता रहा। मैंने यकीन दिलाया कि मैं आज ही सरवर से तज़किरा करूंगा, और कोई औरत कसरे अहमर में किसी तरह आ भी जाती है तब भी मैं इसके लिए पूरी रोकथाम करूंगा। फेरोज ने कहा, दादा, इस वक्त एक नहीं 2 जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। मौत अपना भयानक मुंह फाड़े हमारी तरफ बढ़ रही है। खुदा न खास्ता अगर इस हलाकत अंगेज खतरा का इसी वक्त कला कमा ना किया जा सका तो फिर पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। डूबने वाले हलाकत के समुंदर में डूब जाएंगे। खुदा के लिए कुछ कीजिए, हम दोनों के लिए नहीं तो कम अज कम मासूम नसरीन के लिए तो कुछ कीजिए। उस कमसिन बच्ची को शफीक माँ की अभी जरूरत है। दादा, ऐसा ना हो कि यतीमी के मनहूस बादल उस प्यारी सी बच्ची को घेर कर उसकी खुशियां फना कर दें। नहीं फेरोज, ऐसा नहीं हो सकता। हम में से कोई भी इस बुरी हालत को देखना गवारा नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि नसरीन के होंठों पर दिल नवाज तबस्सुम हमेशा रखसा रहेगा। मैं शाम तक उसके पास बैठा रहा। जिस वक्त मैं वापस पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मकान में दाखिल होते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गोया इस इमारत के बाहर हर गोशे से नहूसत झांक रही है। उदासी की फिजा खुद को फैला रही है। यहां नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी से मेरा दिल फटा जा रहा था। अचानक मैंने यास्मीन के खांसने की कमजोर आवाज को सुना। वो 5 मिनट तक मुतवातर खांसती रही, यहां तक कि बेदार हो गई। मैं तेजी से उसके कमरे में पहुंच गया। नसरीन एक तरफ बैठी थी। सरवर यास्मीन का सर अपने घुटने में रखे उसका सीना सहला रहा था। लैंप एक तरफ रोशन था। खूबसूरत यास्मीन के चेहरे का रंग इस कदर जर्द हो चुका था कि गोया किसी ने उसके जिस्म का तमाम खून निचोड़ लिया है। उसकी खूबसूरत पेशानी अर्कालूद हो रही थी। वो निहायत कमजोर और नातवा हो चुकी थी। मैंने कमरे में दाखिल होने के बाद नसरीन को गोद में उठा लिया और उसको लेकर उन दोनों के पास आ बैठा। यास्मीन ने अपनी बेनूर आंखें मेरी तरफ घुमाते हुए कहा, दादा, मेरी नसरीन का क्या बनेगा? ये किसे माँ कहेगी? नहीं यास्मीन, नहीं, लेकिन मैं तो चिरागे सहरी हो रही हूं दादा। खुदा के लिए यास्मीन, तुम ऐसी मनहूस बात मुंह से मत निकाला करो। मर्ज दूर हो रहा है, शिफा का यकीन रखो। लेकिन मेरा मर्ज लादवा और इसकी शफा मौहूम है दादा। नाउमीदी गुनाह है यास्मीन। इधर देखो, तुम सरवर को भी रुला रही हो। उस वक्त सरवर अपना सर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर रही थीं।
नसरीन भी उदास हो गई। मैंने उसे यास्मीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटी इसे खिलाओ, देखो तो इसका भी थोड़ा सा चेहरा कमला गया है, थोड़ी देर के लिए ले लो। मैंने नसरीन को यास्मीन के पहलू में लिटा दिया। माँ का जिस्म बुखार से फूंक रहा था। इसके बाद मैंने सरवर को समझाते हुए कहा, बेटा मर्द हो, हिम्मत से काम लो, यास्मीन का बिगड़ा ही क्या है, दवा हो रही है, अब दुआ की जरूरत है, दुआ भी करो, मुझे यकीन है कि यास्मीन जल्दी सेहतयाब हो जाएगी। इसके बाद मैंने यास्मीन के ख्यालात को उसके मर्ज की तरफ से हटाने के लिए उसके भाई का जिक्र छेड़ दिया। बातों बातों में चंद फर्जी मरीजों की ऐसी कहानियां भी बयान कर दी जो अब तक बकायदे हयात हैं। इस किस्म की फर्जी बातों का मकसद सिर्फ यास्मीन की तबीयत में मजबूती पैदा करना था। मैं 2 घंटे तक महज बकवास करता रहा। मेरी इतनी देर की कोशिश का नतीजा भी खातिर ख्वाह निकला। यास्मीन की तबीयत खुद ब खुद बहाल होने लगी, लेकिन मौजूदा हालत आर्जी थी। हर आने वाला दिन यास्मीन के लिए ज्यादा से ज्यादा कमजोरी लाता रहा, यहां तक कि सिर्फ 2 हफ्ते के बाद कसरे अहमर की नहूसत ने फिर अपना वही रंग दिखाया। जिस तरह सरवर के खानदान के दीगर अफराद मौत की नहूसत का शिकार हुए थे, उसी तरह यास्मीन भी हम सबको छोड़कर रिवायती मौत का शिकार हो गई। यास्मीन की मौत निहायत ही पुरस्कार और इंतहाई गमअंगेज थी। नसरीन के रोने पर मेरा दिल फटा जा रहा था। फेरोज इस जान का खबर को सुनकर बदहवास हो गया। उसने दीवार से सर टकराकर खुद को इस कदर जख्मी कर लिया कि वो बहन के आखिरी दीदार करने भी कसरे आमर तक ना आ सका। वो मुर्दे की तरह बेहोश पड़ा रहा। बस्ती के तमाम अफराद सरवर के गम में शरीक थे। नेक यास्मीन को सुपुर्दे लहद किया जा चुका था। सरवर थाड़े मार मार कर रो रहा था। नसरीन माँ को याद करके रोए जा रही थी। उसने रो रो कर अपनी हालत तबाह कर दी थी। मैं अपने दिल पर पत्थर रखे खामोश था। नसरीन को बहलाने और चुप कराने की कोशिश कर रहा था। यास्मीन की मौत के 5वें रोज मैं नसरीन को लेकर फेरोज के पास पहुंचा। फेरोज के हवास बजाना थे। मैंने नसरीन को उसकी गोद में डालते हुए कहा, खुदा के लिए फेरोज सब्र से काम लो। अब यास्मीन की जगह इस बच्ची को उसका बदल समझो। इसे प्यार करो फेरोज, लो इसका मुंह चूम लो। यही तुम्हारी मरहूम बहन की निशानी है। फेरोज के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसका जख्म अभी ताजा था। उसने कराहते हुए कहा, खुदा के लिए दादा, नसरीन को यहां से ले जाओ, अभी ले जाओ, मेरा दिल फटा जा रहा है। अगर देर करोगे तो मैं जान दे दूंगा। यास्मीन, यास्मीन बहन, मुझे भी अपनी दुनिया में बुला लो। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। बस्ती के कुछ लोग उस जगह मौजूद थे। उन्होंने मुझे वापसी का मशवरा दिया। नसरीन को देखकर फेरोज का गम ताजा हो गया था। मेरा उस जगह मजीद ठहरना फेरोज के लिए तकलीफ दे था। मामू को रोते देखकर नसरीन भी रोने लगी थी। चुनाचे मैंने उसे गोद में उठाया और फेरोज को उसी हालत में छोड़कर अपने मनहूस मकान की तरफ वापस लौटा। सरवर अपनी जिंदगी से बेजार एक तरफ पड़ा था। पौधे मुरझा चुके थे। कई दिन से उनको पानी ना दिया गया था। यास्मीन की मौत ने इस बस्ती के लोगों को चौंका दिया और वो एक बार फिर इस मामले पर संजीदगी से बहस करने लगे कि क्या कसरे अहमर वाकई मनहूस है। नसरीन हर रोज माँ को याद करके रो लेती थी। मेरा ज्यादातर वक्त उस बच्ची की दिलजोई में गुजर जाता। यास्मीन की मौत के बाद सरवर दिन भर खुदा मालूम कहाँ गायब रहता, जिसकी गैर मौजूदगी में नसरीन के लिए सिर्फ मैं ही वाहिद सहारा था। सरवर सुबह सुबह कहीं चला जाता और गुरूब आफ्ताब के बाद वापस आ जाता। नसरीन बराबर आवाज में रोती रही। मैंने उसको गोद में उठाकर टहलाना चाहा, लेकिन वो मचल गई। दोपहर की सख्त गर्मी में नसरीन ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मेरी तमाम कोशिश बेकार साबित हुई। मैंने उसका दिल बहलाने के लिए बहुत से तरीके इख्तियार किए, लेकिन नसरीन ने रोना बंद नहीं किया। मेरा रुख खुले हुए दरवाजे की तरफ था। नसरीन सिर्फ 1 फुट के फासले पर बैठी रो रही थी। मैं उसके सर पर हाथ फेर रहा था। अचानक मैंने एक खूबसूरत औरत को दरवाजे के दरमियान देखा। उसके बाल खुले हुए थे। एक खूबसूरत लट उसके दाहिने रुखसार पर लटकी हुई थी। उसके सर पर सब्ज पत्तों का ताज और लिबास में सुर्ख और उदे रंग के फूल लगे हुए थे। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। औरत निहायत ही अजीब और पुरस्कार थी। मैंने अपनी जिंदगी में उसे उस रोज पहली मर्तबा देखा। सोचने लगा कि ये कौन हो सकती है। उसकी सूरत उस हसीना से कुछ मिलती हुई थी। एक रात यास्मीन ने खिड़की की दर्ज में से मुझे जो दिखाई थी, जो रात की गहरी खामोशी में सरवर के कमरे में मौजूद थी, जो उसे चूमने के लिए झुकी थी, उस रात का नजारा मेरी आंखों में घूम गया। ज़मीर ने सवाल किया, क्या ये वही औरत है कि जिसकी पुरस्कार मौजूदगी के सदमे के बायस बदनसीब यास्मीन कुछ अरसा बीमार रहकर मर चुकी थी। मेरे बाद नसरीन ने भी उस होशरुबा औरत को देख लिया। इस्तेजाब ने मेरे लबों को सी दिया था।
उसे देखकर भी मैं उससे सवाल न कर सका। नसरीन ने भी उसे देखकर रोना बंद कर दिया था। कमरे में सकूत तारी था। औरत नसरीन की तरफ देख रही थी। अचानक उसका रुख मेरी तरफ हो गया और उसके चेहरे से ऐसा मालूम होने लगा कि गोया वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहती है। दफतन उसने कमरे के सकूत को अपनी दिलकश आवाज से शिकस्त दे दी। उसने कहा, बच्ची रो रही थी, इसका रोना मुझसे नहीं देखा गया। क्या मैं अंदर आकर इसका दिल बहला सकती हूँ? वो तेजी से अंदर आई, नसरीन को गोद में उठाकर चूमने लगी। मैं खामोश बैठा इस ना समझ में आने वाले तमाशे को देखता रहा। औरत ने नसरीन के बिखरे हुए बालों को सुलझाते हुए पूछा, तुम क्यों रो रही हो बेटी? मगर नसरीन ने उसे कोई भी जवाब ना दिया। पुरस्कार औरत ने दोबारा अपने सवाल को दोहराया और उसने उसको गुदगुदाकर हंसाने की कोशिश की। वो हंसी नहीं, अलबत्ता मुस्कुराहट की हालत जरूर पैदा हो गई। उस औरत ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर इस जगह आई हूं। किस कदर दर्द भरी आवाज थी जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। बतलाओ तो तुम्हें क्या दुख है? वो कौन सी अजियत है कि जिसने तुम्हें इस तरह रोने पर मजबूर कर दिया था? इतनी सी देर में नसरीन उस अजीब औरत के साथ मानूस हो गई। जरा देर पहले वो रो रही थी, लेकिन अब वो उसकी गोद में हशाश बशाश नजर आ रही थी। पुरस्कार खातून ने तीसरी मर्तबा नसरीन से उसकी आबुजारी का सबब दरियाफ्त किया, जिसके जवाब में नसरीन ने उसे बतलाया कि वो एक ख्वाब देखकर डर गई थी। मैंने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा, यह ठीक कहती है। कुछ देर पहले ये लड़की मेरे घुटने पर सर रखे सो रही थी। इसने देखा इसकी माँ का इंतकाल हो चुका है। अब मैं ही इसे परवरिश कर रहा हूँ। जिस रोज से इसकी माँ का इंतकाल हुआ है, इसके बाप की हालत अजीब हो गई है। वह सुबह सुबह कुछ बताए बगैर किसी नामालूम मुकाम पर चला जाता है और गुरूब आफ्ताब के बाद वो वापस आता है। ऐसा मालूम होता है कि वो इस दुनिया से घबरा गया है, अपनी जिंदगी से तंग आ गया है। ना वो मुझसे पहले की तरह बोलता है और ना इस बच्ची की खबरगिरी करता है। इस बच्ची की माँ का नाम क्या था? उस औरत ने सवाल किया। यास्मीन, मैंने जवाब दिया। और इस खूबसूरत बच्ची को किस नाम से पुकारते हैं? मरने वाली ने अपनी पसंद से इसका नाम नसरीन रखा था। अब इस घर में सिर्फ यही खूबसूरत जवां साला मरहुमा की वाहिद यादगार है। उसने मरते वक्त इसे मेरे सुपुर्द कर दिया था। मुझसे जो कुछ मन पड़ा है मैं इसके लिए कर रहा हूँ। नसरीन बड़ी आला मिजाज थी, मगर माँ की मौत के बाद ये भी अपने बाप की तरह चिड़चिड़ी हो गई है। क्यों नसरीन? औरत ने उसकी आंखों में झांका। नसरीन ने इस बात में सर हिला दिया। उस औरत की पुरस्कार शख्सियत मेरे लिए मुअम्मा साबित हुई थी। मुझे उसकी आमद के मुतल्लिक कुछ भी इल्म नहीं था, चुनाचे मैंने दरियाफ्त किया। क्या मैं आपसे आपकी आमद का सबब मालूम कर सकता हूँ? मैं सिर्फ नसरीन के रोने की आवाज सुनकर आ गई हूँ। इस जगह ठहरने का मकसद इस काम में सिर्फ आपकी मदद करना है। आप इसे खुश रखना चाहते हैं और मैं आपके इस कठिन काम में सिर्फ आपका हाथ बटाने आई हूँ। और बस काश मैं ऐसा कर सकूं कि मैं खुद भी मुजस्समा दर्द और खूगर गम हूँ। साहिब दर्द ही लज्जत गम से आशना हो सका है। बेदर्द क्या जाने के गम क्या होता है। इसके बाद उसने नसरीन को चूमते हुए कहा, हाँ बेटी, ये तो बता दो कि तुमने ख्वाब में ऐसी कौन सी बात देखी जो तुम्हें इस कदर दुख हुआ। मैं तुम्हारे उस ख्वाब को सुनना चाहती हूँ। जो कुछ याद हो सुना दो। नसरीन ने कहा, मुझे अब तक सब कुछ याद है। उसके जिस्म में झिरझिरी सी पैदा हो गई, चेहरे पर जर्दी दौड़ गई। उसने घबराकर अपना सर उस औरत के सीने से लगा दिया। डरो मत नसरीन, तुम हमारी हिफाजत में हो, वो अपनायत भरे लहजे में बोली। कुछ देर के बाद उसने सर उठाकर उस खूबसूरत औरत की तरफ देखना शुरू किया। बाहर आसमान से झुलसा देने वाली किरणें बरस रही थीं। गर्द के बगौले चक्कर खाते फिर रहे थे। जमीन का हर जर्रा तप रहा था। दरख्तों के सरसब्ज पत्ते भी गर्मी के बायस कमला से गए थे। परिंदे धूप से बचने के लिए शाखों के दरमियान छुपे बैठे थे। दरियाए फरात के साथ साथ दूर तक उस वक्त हू का सा मैदान दिखाई दे रहा था। अपना ख्वाब सुनाओ नसरीन। सुनिए, नसरीन ने कहा। मैं भी पूरी तरह उस तरफ मुतवज्जा हो गया। उस मासूम बच्ची का वो ख्वाब जिसे देखकर वो इस कदर रोई कि मैं भी परेशान हो गया, जरूर सुनने के काबिल है। मैंने देखा कि मैं अपने बाप की गोद में बैठी हूँ। हम उस वक्त कब्रिस्तान में थे। मेरी अम्मा की कब्र पर जरा ही देर पहले अब्बा जी ने फूल बिखेरे थे। वो दुआए मगफिरत से फारिग होने के बाद मुझे गोद में लेकर उसी जगह बैठ गए थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें गम आलूद थीं। ऐसा मालूम होता था कि अब्बा जी अपनी आंखों में समुंदर का तूफान छुपाए हुए हैं। मैं कभी अपनी माँ की कब्र की तरफ देखती और कभी अब्बा जान के अफसुर्दा चेहरे की तरफ देखने लगती। उस वक्त हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हवा के झोंकों के जरे हर तरफ बिखरे हुए दरख्तों के जर्द रंग के सूखे पत्ते उड़ते फिर रहे थे।
دفعتاً عجیب قسم کی سریلی آواز بلند ہوئی جو شروع میں مدھم تھی لیکن بتدریج سخت اور تیز ہوتی گئی۔ ہم سے 20-25 قدم کے فاصلے پر گرد کا ایک عظیم بگولا چکر کھا رہا تھا جو 2 گز بلند ہوگا۔ میری نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں، شاید آواز بھی اسی بگولے کے درمیان سے بلند ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی بگولا بھوتوں کی طرح ناچتا ہوا مغرب کی طرف بڑھنے لگا۔ جس مقام سے اس غبار نے بڑھنا شروع کیا تھا وہ جگہ خود بخود اس طرح پھٹ گئی گویا کہ شدید قسم کے زلزلہ نے وہاں شگاف پیدا کر دیا ہے۔ کچھ زیادہ دیر نہ تھی کہ اس شگاف میں سے چنگاریاں بلند ہوتے دیکھی گئیں۔ وہی چنگاریاں شعلوں میں منتقل ہو گئیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ آگ کا ایک چھوٹا سا سمندر موجیں مارنے لگا۔ اس آگ میں سبز رنگ کا ایک جہنمی شعلہ بھی موجود تھا جس کی لمبائی 2 بالشت ہوگی۔ وہ کبھی زمین سے 2 فٹ بلند ہو جاتا اور کبھی سطح سے لگ جاتا۔ آگ کے اس الاؤ میں صرف وہی جہنمی شعلہ میری نظروں میں چڑھا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ اچانک اسی شعلے میں سے ایک سیاہ رنگ کے ناگ نے خود کو نمودار کیا جسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ ابا جان بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ناگ کا رخ ہماری طرف تھا۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ ہماری طرف بڑھتے ہوئے پھنکارے بھی مار رہا تھا۔ ابا جان نے مجھے اپنے سے لپٹا لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہاں سے دور ہو جائیں لیکن اسی آگ کی دیوار نے ہم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک آتشی دائرہ ہم کو ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ کالا ناگ بھی قریب پہنچ چکا تھا۔ قریب تھا کہ وہ ہم میں سے کسی ایک کو ڈس لے لیکن اسی وقت ایک بہت بڑا سفید رنگ کا پھول جو زمین سے صرف 2 گز کی بلندی پر معلق تھا بڑھ کر ہمارے پاس پہنچ گیا۔ کسی نے پھول میں سے پکارا، نسرین کو اس پر پھینک دو ورنہ اسے بھی کھو دو گے۔ ابا جی نے مجھے بدحواسی کے عالم میں اس بڑے پھول کی طرف اچھال دیا۔ اس سے قبل کہ میں اس پر گرتی میں ایک خوش رنگ تتلی کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ ناگ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا کچھ حصہ ابھی تک جہنمی شعلے کے درمیان تھا۔ ناگ نے پھول پر پھنکار ماری تو میں اس پھول کی کٹوری میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں کافی سردی تھی۔ ناگ کے زیادہ نزدیک ہونے پر پھول نے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس موذی ناگ کا جسم بھی بڑھتا رہا۔ میرے والد ابھی تک اسی مقام پر کھڑے تھے۔ شاید وہاں کی زمین نے ان کے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ پھول تقریباً 1 فرلانگ دور ہو گیا لیکن ناگ کا جسم بھی اس قدر طویل ہو چکا تھا کہ اتنے فاصلے کے باوجود اس کا فاصلہ کم نہ ہوا۔ ناگ کی دم کا کچھ حصہ ابھی تک اس سبز رنگ کے شعلے کے درمیان پوشیدہ تھا۔ دفعتاً ابا جان نے وہیں سے ایک نوکدار پتھر اٹھا کر اس ناگ کے جسم پر پھینک مارا تو غالباً درد سے وہ بلبلا اٹھا اور غضبناک حالت میں چلا کر پھول پر زور سے پھنکار ماری لیکن پھول اس سے متاثر ہوئے بغیر دور ہوتا گیا۔ اب ناگ دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس ناگ نے ابا جان کے جسم میں بل ڈال دیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو لے کر اسی جہنمی شعلے میں داخل ہو گیا۔ سفید پھول کی تمام پنکھڑیاں خود بخود مرکز سے علیحدہ ہو گئیں اور میں دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ کر زمین پر گر پڑی۔ ایک طرف ناگ مردہ حالت میں پڑا تھا، دوسری طرف میرے ابا کی جھلسی ہوئی لاش تھی۔ آگ نے دوبارہ بگولے کی شکل اختیار کر لی۔ بگولا لاش کی طرف بڑھا یہاں تک کہ اس نے اپنے کثیف دامن میں ان دونوں کو چھپا لیا۔ اچانک میں نے اپنے والد کے رونے کی درد بھری آواز سنی جسے سن کر میں تڑپ اٹھی۔ میری روح نے شدید قسم کی اذیت محسوس کی۔ اسی وقت فرتے خوف سے میری نیند اچاٹ ہو گئی۔ میں اپنے اسی خواب کے ہیبتناک تصور کے باعث رونے لگی۔ اتنا کہنے کے بعد نسرین خاموش ہو گئی۔ میں بھی خاموش بیٹھا اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اس پراسرار عورت نے بھی پوری توجہ کے ساتھ نسرین کے اس ڈراؤنے خواب کو سنا۔ عورت کے چہرے پر اداسی نمودار ہو چکی تھی۔ اس کی حالت زرد اور دل دردمند معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی سحر انگیز آنکھوں سے آنسوؤں کی 2 موٹی بوندیں گریں۔ اس نے اسی وقت فرتے غم سے نسرین کو دبوچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے مدھم سی آواز میں اس عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا، خدا ہم پر رحم کرے بیٹی، وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پتوں کا تاج رکھنے والی ہوش ربا نازنین متواتر 1 ماہ تک برابر قصر احمر میں آتی رہی۔ وہ ہمیشہ سرور کے چلے جانے کے بعد آتی۔ اس جگہ آتی، دن بھر نسرین کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی اور غروب آفتاب سے ذرا ہی دیر پہلے واپس چلی جاتی۔ عورت میرے لیے ایک عجوبہ تھی کیونکہ اتنے عرصے کے بعد بھی ہم کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے اور پھر کہاں چلی جاتی ہے۔ اس میں بہت سی باتیں دوسری عورتوں سے بالکل مختلف تھیں۔ ہمیں ابھی تک اس رحمدل عورت کا نام بھی معلوم نہ ہو سکا۔ البتہ نسرین اس کو جنگل کی شہزادی کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ میں نے اسے نام و پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی مگر اس نے ٹال دیا۔ اس کے ہر روز اس جگہ آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرا کام بٹ گیا۔ وہ گھر کی صفائی کا کام خود انجام دے جاتی تھی۔
इसके अलावा उसकी वजह से नसरीन की तबीयत बहली रहती थी। उसने अपनी तरफ से ऐसी मोहब्बत का मुजाहरा किया कि नसरीन जो बराबर अपनी माँ को याद करके रो लिया करती थी, वो रफ्ता रफ्ता माँ के गम को भूलने लगी। उसकी सेहत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी। उसे उस पुरस्कार औरत से काफी दिलचस्पी पैदा हो गई थी और वो औरत भी उसको इसी जज्बा से चाहती थी कि गोया नसरीन उसी के वतन से है। अगर किसी रोज उसको आने में जरा देर हो जाती तो नसरीन उसके इंतजार से परेशान होकर कसरे अहमर के सदर दरवाजे पर पहुंच जाती थी और जो ही वो उसको सामने से आता देखती बस वहीं से शोर मचाने लगती थी। वापसी में आकर मेरे कांधे पर बैठ जाती, कान से मुंह लगाकर कहती, दादा जंगल की शहजादी आ गई। वो औरत उस जगह आती और आते ही नसरीन को गोद में उठा लेती थी। दोपहर के वक्त सख्त गर्मी में जब वो उसको थक थक कर सुलाना चाहती तो वो इस काम के लिए अपने मध्यम सुर में एक अजीब किस्म का गीत गुनगुनाने लगती थी। बस नसरीन उस खूबसूरत औरत के घुटने पर सर रखे बेखबर सो जाती। खुदा ने उस अजीब औरत को हमारे लिए जैसे रहमत का फरिश्ता बनाकर भेज दिया था। उसकी बातों में मिठास और मुस्कुराहट में जादू था। वो नसरीन जैसी जिद्दी लड़की को बहलाने फुसलाने का फन खूब जानती थी। एक रोज मैंने उससे कहा, बेटी तुमसे नसरीन बेपनाह मोहब्बत करने लगी है। जब भी जरा देर हो जाती है तो तुम्हारे लिए बेताब हो जाती है। खुदा मालूम तुमने उस पर क्या जादू कर दिया है। उसने कहा, नसरीन की अभी उम्र ही क्या है, बच्ची है। जो भी उससे मोहब्बत करेगा ये उसी से मोहब्बत करने लगेगी। मुझे खुद भी इससे खसूसी लगाव है। मैंने कहा, लेकिन तुमने अभी तक अपने मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं बतलाया, यहां तक कि मैं तुम्हारे नाम से भी लाइलम हूं। ला इल्मी अच्छी है बाबा। जब इंसान किसी की अहमियत का इल्म हासिल कर लेता है तो फिर दिमाग पर और भी बोझ बढ़ जाता है। ख्यालात और तजस्सुस की दुनिया में हलचल बर्पा हो जाता है। दिल को सुकून और दिमाग को आराम नहीं मिलता। ला इल्मी अच्छी है, उसी को अपनाए रहो। मैं आती रहूंगी। वाज़े रहे कि अगर मैं किसी मामले में आपकी तरफ से अगर असरार देखूंगी तो फिर हो सकता है कि मैं इस जगह आना तर्क कर दूं। नाना खुदा के लिए ऐसा ना करना, वरना नसरीन तो रो रो कर अपनी जिंदगी तबाह कर लेगी। अब उसे मोहब्बत बढ़ाई है तो जब तक ये जवान ना हो जाए उसे निभाओ। मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी इस सिलसिले में तुमको तकलीफ ना दूंगा। नसरीन ने कहा, दादा आप तो नाहक इन्हें नाराज करते हैं। नाम के मुतालिक तो मैंने आपको कई मर्तबा बतला दिया है कि आप इन्हें जंगल की शहजादी कहकर पुकार लिया करें। क्यों? नसरीन ने उस औरत की तरफ देखते हुए पूछा, ये कोई बुरा नाम तो नहीं है? नहीं, अच्छा है बेटी, इससे और अच्छा क्या नाम हो सकता है। तुमने ये नाम रखकर मेरी इज्जत अफजाई की है। इज्जत अफजाई क्या होती है दादा? नसरीन ने दरियाफ्त किया। किसी की इज्जत को बढ़ाना, किसी की कदर करना और उसको दूसरों से अच्छा समझना। नसरीन ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहा, फिर तो अब मैं बार बार आपको इसी नाम से पुकारूंगी, जंगल की शहजादी, जंगल की शहजादी, जंगल की शहजादी। जब दिन भर की मुसाफत के बाद थका मांदा आफ्ताब आराम करने की गर्ज से मगरिब में दाखिल हो गया तो जंगल की शहजादी हस्बे मामूल चली गई। कुछ देर बाद सरवर आ गया। वह बीवी की मौत के बाद उदास और खोया हुआ रहने लगा था। आज ना जाने क्या बात थी जो उसने आते ही नसरीन को गोद में उठा लिया और उसका मुंह चूमते हुए कहा, अब तो हमारी नसरीन बड़ी साफ सुथरी रहने लगी है। क्यों दादाजी? क्यों नहीं, जो जो इसे शऊर आता जाएगा ये ठीक हो जाएगी। नसरीन ने अपने दोनों बाजुओं को बाप की गर्दन में डालते हुए कहा, लेकिन अब्बा जान ये सब कुछ जंगल की शहजादी के तो फैल है। जंगल की शहजादी? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। इधर क्या देखते हैं, मेरी तरफ देखिए। बड़ी अच्छी हैं, पत्तों का ताज सर पर रखती हैं। मैं उन्हीं को जंगल की शहजादी कहती हूँ। अब्बा जान ये नाम उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। मैं कुछ नहीं समझा बेटी। ओहो, वो जो मेरा मुंह धुलाती हैं, कपड़े धोकर पहनाती हैं, मेरे बालों को संवारती हैं और फिर मीठे मीठे गीत गाकर दोपहर को मुझे सुला देती हैं। ये क्या कह रही हो नसरीन बेटी? सरवर ने मजीद हैरत से पूछा। ठीक कहती है, मैंने जवाब दिया। सरवर ने नसरीन को गोद से उतारकर अपने सामने खड़ा कर दिया। उसके बशरे से यूं मालूम होने लगा कि गोया वो सोच में पड़ गया है। मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं समझा। नसरीन दोबारा उछलकर बाप से लिपट गई। जब आप बाहर चले जाते हैं तो वो आ जाती है, दिन भर रहती है और शाम से पहले चली जाती है। कौन आती हैं और कहाँ चली जाती हैं? ये क्या तिलिस्म है दादा? आप ही बतलाएं कि मामला क्या है। मैंने कहा, बेटा खुदा ने एक औरत के दिल में नसरीन के लिए रहम पैदा कर दिया है। आपके जाने के बाद वो इस जगह आ जाती है। नसरीन भी उससे बहुत मानूस हो चुकी है। वो जो कुछ भी करती है हमारे लिए बहुत कुछ है। उस औरत का नाम इसने जंगल की शहजादी रख लिया है। उसी औरत की वजह से नसरीन अपनी माँ के गम को भी भूल चुकी है। बड़ी नेक है वो औरत।
ताज्जुब है कि एक अजनबी औरत अपना इतना वक्त महज नसरीन के लिए कसरे अहमर में गुजार देती है। वाकई बहुत नेक है, हमें तो उसका मशकूर होना चाहिए। लेकिन वो है कौन? ये मैं भी नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। तो क्या उसका नाम वाकई जंगल की शहजादी है? जी नहीं, ये तो सिर्फ नसरीन ने रख लिया है। तो फिर असली नाम औरत का क्या है? सरवर ने सवाल किया। मैं नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। क्या वो इस बस्ती की रहने वाली है? जी नहीं। ताज्जुब है दादा कि तुम्हें अभी तक उसके मुतल्लिक कुछ भी मालूम नहीं हो सका। कम से कम उसका पता तो दरियाफ्त कर लिया होता। बेटा, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे नागवार गुजरा, इसलिए मैंने उसे मजबूर करना मुनासिब नहीं समझा। क्या आज भी वो आई थी? हर रोज आती है। नसरीन को इस कदर साफो सुथरा रखने में सिर्फ उसी का हाथ है। सरवर ने कहा, वो अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। खुदा उसे इस नेक काम की जजा दे। उस रोज देर तक उस पुरस्कार औरत के मुतल्लिक बातें होती रहीं। दूसरे रोज सरवर काफी ताखीर से बाहर गया। इत्तफाक की बात है कि उस रोज वो भी लेट हो गई। सरवर के चले जाने के 1 घंटे बाद वो उस जगह आई। नसरीन ने आते ही कहा, शहजादी, आज आपका अब्बा जान इंतजार कर रहे थे, वो अभी अभी गए हैं। वो भी आपको देखना चाहते हैं। क्या कहते थे? उस औरत ने सवाल किया। शायद वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। शुक्रिया अदा करना? आखिर क्यों? वो मुझे साफ सुथरा देखकर कल बहुत खुश हुए थे। मैंने उनसे आपका जिक्र कर दिया था। वो बड़ी देर तक आपके मुतालिक बहुत कुछ दरियाफ्त करते रहे, नाम पूछ रहे थे। मैंने बतला दिया कि उनका नाम जंगल की शहजादी है। ये नाम उनको भी पसंद है। मेरी खुशनसीबी है जो मेरा नाम तो उन्हें पसंद है, लेकिन वो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बेताब है। नहीं नसरीन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी दानिश्त में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं जिसके लिए उनको ऐसा करने की जहमत दूं। उसने अचानक अपना रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, बाबा, खुदा के लिए उनसे मेरी तरफ से अर्ज कर दें कि वो इस तरह मुझे शर्मिंदा न करें। अच्छा, नहीं करेंगे। नसरीन उछलकर उसकी गोद में बैठ गई और अपनी उंगलियों से उसके ताज के सब्ज पत्तों को छेड़ने लगी। कितना खूबसूरत मालूम होता है पत्तों का बना हुआ ये ताज, उसने कहा। बेटी, जंगल की शहजादी के लिए जंगली पत्तों का ताज ही मुनासिब हो सकता है। इसके बाद वो रोजाना के काम में मसरूफ हो गई। दोपहर से जरा पहले ही तूफान गर्दो गुबार बरपा था। हर तरफ भूतों की तरह बगोले नाचते नजर आते थे। ऐसा मालूम होता था कि गोया उस वसी मैदान में गजालान सहर जुनून अंगेजी का मुजाहरा करने के लिए इस जगह थमके हैं। लोग तपिश से बचने के लिए छोटे छोटे घरों में दुबके हुए थे। लोगों का ख्याल था कि इस साल मुद्दतों बाद इतना शदीद मौसम आया है। नसरीन जंगल की शहजादी के घुटने पर सर रखे सो रही थी और वो उसके बिखरे हुए बालों के दरमियान अपनी खुशनुमा लंबोतरी उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। उसकी पुश्त दीवार से लगी हुई थी। मैं भी एक तरफ बैठा ऊँग रहा था। पसीने से तमाम जिस्म शराबूर हो रहा था। अगर वो औरत सो जाती तो शायद मैं भी किसी गोशे में दराज हो जाता, मगर वो दोपहर के वक्त सोने की आदी न थी। मुझे ऊँगते देखकर उसने कहा, आप आराम कर लें, मैं जाग रही हूँ। बाहर सख्त किस्म का तूफान आया है। मैंने उसकी आवाज को सुनकर अपनी आंखें खोल दी। मेरी बौखलाहट देखकर पुरस्कार नाज़नीन ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। पानी का बर्तन करीब ही रखा था। मैंने पानी पीने के बाद अपनी नदामत दूर करने के लिए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर दिया। बेटी, आज तो इतनी गर्मी है कि पसीना खुश्क होने में नहीं आता। शायद मंतका हारा की तमाम गर्मी सिमट कर इसी जगह आ गई है। वाकई इन दिनों मौसम निहायत ही अजीब है। अभी तक आंधी के झक्कड़ चल रहे हैं। बाहर की जमीन आग की तरह तप रही होगी। अभी मैंने जवाब में कुछ कहने का इरादा ही किया था कि बाहर कुछ फासले पर शोर की आवाज सुनाई दी। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, ये कैसा शोर है बाबा? देखता हूं। मैं वहां से उठकर बाहर की तरफ लपका। शोर बढ़ता जा रहा था। सदर दरवाजे तक पहुंचने से कबल मैं इसके राज से वाकिफ हो गया। शायद उम्मुल अजल बस्ती में घुस आई थी, जिसे निकालने के लिए लोग शोर मचा रहे थे। बस मैं भी बाहर पहुंच गया। मेरा ख्याल दुरुस्त था। लोग उस मनहूस बुढ़िया को बस्ती से निकालने की खातिर घरों से बाहर आ रहे थे। मेरे देखते ही देखते लातादाद मर्द, औरतें और बच्चे वहां जमा हो गए। उन्होंने पत्थर उठाए हुए थे और वह दाएं तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। खुदा मालूम उम्मुल अजल आज इधर कहां से आ मरी। एक मोटे आदमी ने तेज और भारी आवाज में कहा, इसे लहूलुहान करके मौत की आगोश में पहुंचा दो। मारो मारो, आगे मत बढ़ने दो। हलाकत की मां, नहुसत की निशानी, मौत की आंधी। एक ना खत्म होने वाला शोर बरपा था। उस बुढ़िया पर पत्थरों की बारिश शुरू हो चुकी थी।
हर तरफ से मारो मारो, निकालो निकालो की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं बड़े दरवाजे के पास खड़ा उस मंजर को देख रहा था और जानता था कि ये लोग उस वक्त तक वापस ना लौटेंगे जब तक कि उम्मुल अजल का खतरा पूरी तरह ना टल जाए। पत्थर हजूम की मुट्ठियों में से निकल निकल कर तेजी से बुढ़िया की तरफ जा रहे थे और वो अभी तक उसी जगह मंडला रही थी। लोगों के उस जम्मे गफीर को देखकर पता चलता था कि बस्ती के तमाम लोग उस खतरा को दूर करने के लिए घरों से निकलकर इस तरफ आ चुके हैं। बेपनाह संगबारी का मुकाबला ज्यादा देर तक करना उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि मैंने देखा कि उसने मुखालिफ सिमत में भागना शुरू कर दिया। उसके अकब में वो हजूम भी बढ़ता गया। इस औरत के साथ अमूमन ऐसा ही सलूक होता था। वो जिस तरफ भी जाती लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते। वो कई बार सख्त जख्मी भी हुई मगर मरी नहीं। भयानक वीराना उसका ठिकाना था। मैं उसी जगह खड़ा देख रहा था। हजूम बहुत दूर निकल गया था। दूरी के सबब उम्मुल अजल निगाह से ओझल हो चुकी थी। शोर भी दब चुका था। मैंने अपना रुख फेरा। पुष्ट पर जंगल की शहजादी मौजूद थी। उसके चेहरे पर उदासी, आंखों में गम की झलक मौजूद थी। उसके पतले पतले होंठों पर पिपड़ी जमी हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे की मौजूदा हालत से ये जाहिर होता था कि गोया उस वक्त उसकी रूह को कुचल दिया गया है। आओ अंदर चलें। वो उस वक्त हद दर्जा रंजीदा थी। हम दोनों सेहन में वापस पहुंच गए। उसने अपनी लरजती हुई आवाज में पूछा, ये बदनसीब औरत कौन थी? उसने सवाल किया। उम्मुल अजल। हम और कुर्ब जवार के तमाम लोग इस औरत को इसी नाम से पुकारते हैं। उम्मुल अजल बड़ा अजीब नाम है। आखिर ये है कौन और लोग इसे बुरी तरह क्यों मारते हैं? मैंने दीवार का सहारा लेकर बैठते हुए कहा, बेटी, उम्मुल अजल निहायत मनहूस औरत है। ऐसी मनहूस कि जिस बस्ती से एक मर्तबा गुजर जाए उसी जगह वबा फूट पड़ती है। लोग मरने लगते हैं। घर के घर खाली हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि उसकी नहूसत की वजह से उसका नाम उम्मुल अजल पड़ गया है। ये औरत जिस आबादी में भी दाखिल होगी इसका वहां यही हशर किया जाएगा। बच्चा बच्चा इसको जानता है। इसका आना गोया मौत का आना है। उम्मुल अजल, उस औरत ने कहा, क्या ये वाकई मनहूस है? मेरे ख्याल में तो ये महज लोगों का वहम है। वो गरीब तो बज़ाहिर खुद भी लबे गोर है। लबे गोर? नहीं नहीं बेटी, वो बड़ी सख्त जान संगबारी के वक्त लहूलुहान हो जाती है। जगह जगह से उसका जिस्म फट जाता है, लेकिन सख्त जान बुढ़िया ऐसी हालत में भागती रहती है। वो ना बीमार पड़ती है और ना मरती है। अलबत्ता वो जिस कस्बा या देहात से गुजरती है अपनी नहूसत का तोहफा मौत छोड़ जाती है। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि अब उम्मुल अजल की नहूसत को महज वहम कहकर नजरअंदाज कर देना किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। बड़ी अजीब औरत है वो बुढ़बुढ़ाई। मैं नहीं समझती कि उसके और नहूसत के दरमियान किसी किस्म का ताल्लुक है। खुदा उस पर और हम सब पर रहम करे। मैंने कहा, बेटी, उस औरत को अगर मुतवक्का संगबारी का खतरा हो तो वो क्यों वीराने से निकलकर आबादी का रुख करे? वो खुद आती है और अपने जलों में हम लोगों के लिए मौत व हलाकत भी लाती है। हो सकता है कि वो पागल हो और उसका जुनून ही उसे भी बस्ती की तरफ खींच लाता हो। अचानक उस औरत की आंखें गैर मामूली तौर पर चमक उठी। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या यह मुमकिन है कि मौत और हलाकत इस बेपनाह संगबारी का जवाब हो जो उस फाखरुल अकल औरत पर की जाती है? जुल्म हमेशा अपनी मौत को नजदीक ले आता है। एमाल की सजा जरूर मिलती है। मेरे ख्याल में जो लोग बुढ़िया को हलाक करने का इरादा करते हैं वो खुद हलाक हो जाते हैं। अब कोई उसे उम्मुल अजल कहे या हलाकत की दाती, इसकी जिम्मेदारी उस पर आयद नहीं होती। गुफ्तगू का सिलसिला अभी इसी जगह तक पहुंचा था कि नसरीन ने आंखें खोली और वो उठकर बैठ गई। औरत ने उसे गोद में उठाते हुए पूछा, क्या नींद पूरी हो गई? जी हाँ। वो उस औरत के बालों की एक लट को अपनी उंगलियों से छेड़ने लगी। मैं अभी तक जंगल की शहजादी का जायजा लेने में महव था। मेरा ख्याल है कि उस पुरस्कार नाज़रीन की रूह मुस्तरिब और दिल दर्दमंद था। वो अपनी उदासी और मलाल को छुपाने के लिए नसरीन की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। उसका रुख भी दूसरी तरफ हो गया था। वो इतनी अजीब औरत थी कि जो अपना हर मामला पर्दे राज में रखना चाहती थी। मैंने उसे मुदाखलत से परेशान करना गैर मुनासिब समझा। वो कुछ देर तक नसरीन से बातें करती रही। इसके बाद उसने उसका हाथ मुंह धुलाया। वो उसकी गोद से निकलकर खेलने लगी। इसी अस्ना में वो लोग भी वापिस आ गए जो उम्मुल अजल के ताक़ुब में गए थे। उनके बोलने की आवाजें आ रही थीं। नसरीन ताज़ा दम हो चुकी थी। वो उछल कूद से हम दोनों का दिल बहला रही थी। उस रोज उस औरत ने खाना जल्दी तैयार कर लिया और वो दूसरे रोज आने का वादा करके 1 घंटा पेशतर उस जगह से चली गई।
اس کے چلے جانے کے بعد میں دیر تک اس معاملے پر غور کرتا رہا۔ ام الاجل ایک ایسی قابل نفرت عورت تھی کہ جس کے لیے کسی کے دل میں ہمدردی یا محبت نہ تھی۔ ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے منحوس جسم کو کبھی بھی اس بستی میں نہ لائے، لیکن اس کے دل میں اس بڑھیا کے لیے ضرور ہمدردی موجود تھی۔ اس وقت جبکہ سنگ باری کا عمل جاری تھا، جنگل کی شہزادی ضرور کڑ رہی تھی۔ آخر کیوں؟ کیا وہ اس بڑھیا سے واقف تھی؟ لیکن میں اس کے لیے قطعی فیصلہ نہ کر سکا۔ شام کے وقت جبکہ ہوا میں خنکی پیدا ہو چکی تھی اور سورج کے غروب ہونے میں زیادہ وقت نہیں تھا، سرور بھی واپس آ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، وہ عورت کہاں ہے؟ آج وہ جلدی چلی گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ افسوس، میں تو محض اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جلدی آ گیا ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہیں ملی۔ نسرین نے کہا، ابا جان، وہ کہتی تھیں کہ اس میں شکر گزاری کی کچھ بھی ضرورت نہیں، آپ ناحق کتنا خیال کر رہی ہیں۔ بیٹی، سرور نے دونوں بازوؤں کو دراز کر کے اس کو گود میں اٹھا لیا اور اس کی چمکتی ہوئی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، بیٹی پھر بھی ہمیں اپنے بلند اخلاق سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جبکہ ہلکی سی تاریکی پھیلنے لگی تھی، بستی کے لوگ قصر احمر میں جمع ہو گئے۔ وہ محض ام الاجل کے سلسلے میں غور کرنے کے لیے آئے۔ ان لوگوں میں بستی کا سب سے بوڑھا شخص عبداللہ بھی تھا، جس کی عمر کسی طرح 150 برس سے کم نہ ہوگی۔ اس نے رائے دی کہ ام الاجل کی نحوست کو اس بستی سے دور رکھنے کے لیے دعا مانگی جائے۔ اس منحوس بڑھیا کے متعلق بابا عبداللہ کو جو کچھ معلوم تھا وہ بھی بہت کم تھا۔ عام روایت یہ تھی کہ تقریباً 200 برس پہلے ایک خوفناک زلزلے کے جھٹکے سے ایک پہاڑی پھٹ گئی تھی، اور یہ بڑھیا جو منحوس کہلاتی ہے اس وقت بھی بڑھیا تھی، جو پتھروں پر زخمی حالت میں پائی گئی۔ جس بستی میں اس کی تیمارداری کی گئی، وہاں ایسی بیماری امٹ پڑی کہ ویرانی ناچنے لگی۔ اس ناخوشگوار واقعے نے اس کی نحوست کو زبان زدے عام کر دیا۔ اس کے بعد اس کی شدید نحوست کے بے شمار ثبوت فراہم ہو گئے، اور لوگوں نے اس کو ام الاجل کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ جو لوگ اس سے واقف ہو چکے تھے، ان کے عزیز و اقارب ان کی نحوست کا شکار بن گئے تھے۔ ان کے دلوں میں اس پراسرار ضعیفہ کے خلاف جذبہ نفرت کا مستقل ہو جانا یقینی امر تھا۔ وادی فرات کی پھیلی ہوئی بستیوں کے لاتعداد باشندے اس سے واقف تھے، اور وہ جب بھی کسی بستی کا رخ کرتی تو لوگ اس کو اپنی قیامگاہ سے دور بھگانے کے لیے مشترکہ طور پر پتھراؤ شروع کر دیتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ وہ سحر انوار سے ویرانوں کی خاک چھانتی پھر رہی ہے، اور کبھی کبھی خلاف توقع وہ کسی نہ کسی بستی کا رخ بھی کر لیتی ہے۔ اس روز سب نے مل کر دعائیں مانگی۔ اس جگہ رہنے والے لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور وہ غم و غصے کی حالت میں اسے گالیاں دیتے جا رہے تھے۔ ام الاجل کے بعد ہلاکت کا دور ضرور آ جاتا تھا۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا کہ صرف 3 دن میں 2 درجن آدمی ہیضے کا شکار ہو کر ملک عدم کو سدھار گئے۔